ان لیس للانسان الا ما سعى۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ ہم لوگ آج اس اردو بیداری کانفرنس میں شریک ہوئے۔ شعر ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج کے اس جلسے میں شریک مہمان جناب شہباز عالم صاحب، ڈاکٹر غازی ساحل صاحب جو کٹیہار میڈیکل کالج میں چائلڈ ڈپارٹمنٹ کے ایچوڈی ہیں، سید نظر علی صاحب جو مولانا مظہر کبھی فارسی یونیورسٹی میں سیکشن افسر ہیں، مفتی برکت علی صاحب، افضل حسین صاحب، اور ہمارے زاہد حلیمی صاحب کے والد حلیم الدین صاحب، معزز مہمان کرام، علماء کرام، طلبہ و طالبات اور میڈیا کے ہمارے بھائی۔ اردو بیداری کانفرنس کا مقصد ہے کہ اردو کے تئیں لوگوں کو بیدار کیا جائے، اور اس کے تئیں جو ہماری بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مایوسی کے شکار ہو گئے ہیں کہ یہ زبان پژمردہ ہو چکی ہے اور اس کا فروغ رک گیا ہے، جس کی جانکاری نہیں رہنے کو اس طرح کی سوچ پیدا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ انجمن ترقی اردو سر سید احمد خان کی سوچ تھی کہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جس کے تئیں اردو کے فروغ کے لیے پورے ہندوستان میں کام کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ان کے انتقال کے بعد 1903 میں اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا اور اس کے پہلے صدر تھامس آرنلڈ بنے اور اس کے پہلے سیکریٹری شبلی نعمانی صاحب بنے اور اس کے جوائنٹ سیکریٹری مولانا ابوالکلام آزاد بنائے گئے، اور انہی لوگوں کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں انجمن ترقی اردو کے ساتھ کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ اور آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہوگی کہ اس کا ساتھ کا قیام 1965 میں بہار میں قائم کیا گیا۔ اس کے پہلے جو ہے صدر بنے تھے غلام سرور صاحب، اور اس کے بعد چناؤ 74 میں ہوا۔ اس کے بعد ڈاکٹر مغلی صاحب اس کے صدر بنے، اور اس کے بعد 2003 میں چناؤ ہوا۔ پھر اس کا مجھے جو ہے ڈاکٹر مغلی صاحب پھر صدر چنے گیا اور میں سیکریٹری چنا گیا، اور 2003 سے ابھی تک میں سیکریٹری کے حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ آپ کو بتا دوں کہ اسی انجمن کے کاوشوں اور کوششوں سے 1980 میں بہار میں کشمیر کے بعد اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا، اور اس دوسری سرکاری زبان کے تحت تمام طرح کے گزٹ نوٹیفیکیشن اردو میں شائع ہو، اردو میں درخواستیں آفسوں میں قبول کیے جائیں، تمام دفاتر کے سائن بورڈ نیم پلیٹ اردو میں لکھے جائیں، رجسٹری آفس میں اردو میں ہمارے دستاویز قبول کیے جائیں۔ اس طرح کے ہدایات جاری کیے گئے اور اس پر پورے بہار میں کام چل رہا ہے، اور اس کے تحت تمام دفاتر میں اردو عملے کی تقرری کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر جگن ناتھ مشرا کے وقت میں بہت سارے دفاتر میں اردو عملے کی تقرری ہوئی۔ اس کے بعد بہت دن کے بعد جناب نتیش کمار وزیر اعلیٰ جب بہار میں بنے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام جتنے بھی 538 جو ہے بلاک ہیں، 534 بلاک ہیں، 600 تھانے ہیں، 102 سب ڈویژن، 38 ضلعوں، اور تمام کمشنری اور تمام دفاتر میں اردو عملے کی تقرری کی جائے۔ ابھی حال میں آپ دیکھیے گا 1000 ابھی اردو کے عملے کی تقرری ہوئی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں تمام دفاتر میں ایک اردو ٹرانسلیٹر تقرر کی جائے گی۔ یہ کام چل رہا ہے، اردو کو روزی روزگار سے جوڑنے کا پہل کیا گیا، اور اس سلسلے میں محکمہ اردو ڈائریکٹریٹ قائم سرکار نے کیا، اور نتیش کمار نے اس کو بااختیار ادارہ بنایا، اور اس کے ذریعے سے تمام ضلعوں میں ہر ڈی ایم کو 75,000 روپے دیے جا رہے ہیں، تاکہ ڈی ایم کے ذریعے سے اردو کا فروغ کے لیے ایک میٹنگ کرائی جائے، جس میں طلبہ و طالبات کو انعام سے نوازا جائے، اور یہ فروغ کا کام پورے بہار میں چل رہا ہے سرکاری سطح پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو کے فروغ کے لیے پہلے کیا تھا، بہار میں 5000 اردو مکاتب اسکول تھے،
जिस में उर्दू असादा बहाल होते थे। नीतीश कुमार ने अपने दौर में फैसला किया उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं है, ये जैसे हिंदी मुसलमान पढ़ रहे हैं अकलियत के लोग, वैसे ही हिंदी वाले उर्दू पढ़ें। उन्होंने कहा कि 72,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल में लाजमी तौर पर एक उर्दू टीचर होगा। और इस पहल में कोशिश शुरू हुई। आज मैं बता दूं कि 45,000 उर्दू टीचर स्कूलों में बहाल हो चुके हैं और बाकी जगहों पे बहाली जब जब आप देखिएगा बिहार में बीपीएससी के जरिए बहाली हो या पंचायत या किसी स्तर से बहाली हो, उसमें उर्दू असातिज़ा की बहाली हुई। और अभी पूरे बिहार में पहले 3,000 सेकेंडरी इंटर स्कूल थे, अभी 8,500 सेकेंडरी और इंटर स्कूल खोले गए हैं, जिसमें तकरीबन 5,000 उर्दू असातिज़ा काम कर रहे हैं। बाकी जगह खाली है, उसके लिए कोशिश की जा रही है। इस तरह से जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जैसे बहुत सारे माइनॉरिटीज के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उसके लिए जनाब नीतीश कुमार ने तालीमी मरकज कायम किया और तालीमी मरकज में 10,000 उर्दू पढ़ने और लिखने वाले असातिज़ा की तकर्री की गई और उसमें से अभी 3,000 रिटायर कर गए हैं। उसके लिए हुकूमत बिहार ने एक लेटर जारी करके तमाम डीओ को लिखा है कि उन खाली जगहों पर तकर्री का काम शुरू किया जाए। और इस तरह से उन जो 10,000 हमारे बहाल हुए थे, उन लोगों उन टीचरों को बजाबता सरकार ने टीचर कर, उनको सिर्फ पहले 10,000 रुपये मिलता था, अभी उनकी तनख्वाहें 22,000 कर दी गई है और उनको सरकारी टीचर का बराबर दर्जा दे दिया गया है। इस तरह उर्दू के फरोग के लिए मौजूदा हुकूमत जनाब नीतीश कुमार की क़यादत में पूरे तौर पे जो हक उर्दू का है वो दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि मदारिस जो आज एक बैकबोन है तालीम के, जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, दूसरे इदारों में नहीं जा सकते हैं, काफ़ी तादाद में हमारे बच्चे मदारिस से पढ़ रहे हैं। आज़ादी के बाद नीतीश कुमार के दौरे हुकूमत तक 1127 मदरसे थे जो सरकारी मदरसे थे। उन्होंने आने के बाद 2011 में 2459 मदरसों को एक साथ सरकारी ग्रांट में शामिल करने का फैसला किया। उसमें से शर्त लगा दी गई थी कि 6 कमरे 5 कट्ठा जमीन और असातिज़ा और उसके जो बुनियादी सहूलतें वो उन लोगों को ग्रांट दिए जाए। उसमें 814 को ग्रांट दिया जा चुका है और बाकी की इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है सरकार में। बहुत जल्द बाकी जो मदारिस है 1646 उन लोगों को भी ग्रांट के जुमरे में शामिल किया जाएगा। और मुझे चेयरमैन बनने का मौका मिला, वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बनाया, तो मेरे वक्त में मदारिस को एक बहुत ही नुमाया काम करने का मौका मिला। मदारिस में 25 वर्षों से किताबें नहीं थी, उसका सिलेबस निसाब नहीं था। यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, उसने मदद किया मेरी और उसके देख रेख में नया निसाब तालीम मुरतब किया गया, जिसमें मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के, जामिया मिल्लिया के, अलीगढ़ के और देवबंद के, नदवा के, सल्फिया के, ये तमाम जिम्मेदार जमा हुए यूनिसेफ के दफ्तर में पाटलिपुत्रा में और 2 दिन का वर्कशॉप हुआ और नया निसाब तालीम मुरतब किया गया। मजहबी किताबों के साथ साथ मदरसों में 1 से 8 तक SCRT बुक और 9th and 12th मतलब फौकानिया और मुल्क में NCRT बुक शामिल किया गया। और उनका मैं बिहार गवर्नमेंट से मदरसा के जरिए किताबें छपवा कर SCRT तमाम मदरसों में फराहम कराए गए और NCRT बुक उर्दू में नहीं मिल रही थी, तो वहाँ से मैं सॉफ्टवेयर लाया NCRT से और उस बिहार गवर्नमेंट से, भारत सरकार से NCRT से एग्रीमेंट करके 5% उसको रॉयल्टी दिया गया। और बिहार में उर्दू में साइंस, उर्दू में सोशल साइंस, उर्दू में मैथ, अंग्रेजी और हिंदी छोड़कर तमाम किताबों को उर्दू में छपवाकर बिहार गवर्नमेंट की तकरीबन 2 करोड़ किताब छपवाकर तमाम मदारिस को एक गाड़ी मैंने खरीदा और उस गाड़ी पर रखकर तमाम मदारिस को किताबें फराहम करा दी गई। आज NCRT बुक पढ़कर कोई भी BPSC UPSC कंप्लीट करता है। आज बिहार के तमाम मदारिस में उर्दू किताब, उर्दू में NCRT बुक मौजूद है। अब कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर नहीं किताब है और मदरसा बोर्ड में भी मौजूद है। ये काम इनकलाबी कदम। आज मदरसे के बच्चों के बारे में लोग सोचते थे ये बच्चे पढ़कर सिर्फ बेकार हो जाएंगे। आज मदरसा का बच्चा अगर ईमानदारी के साथ हमारे असातिज़ा उस किताबों को पढ़ा दे तो आज
वो बच्चे BPSC UPSC कंप्लीट करेंगे। इसलिए कि मदारिस की डिग्रियों को अपने वक्त में मैंने बिहार और हिंदुस्तान के अलीगढ़ JNU और यहीं तक नहीं बल्कि अमेरिका गवर्नमेंट ने भी मदरसा को डिग्री को तस्लीम कर लिया है, और यहाँ का पढ़ा हुआ अगर वहाँ भी जाकर दाखिला लेना चाहता है तो ले सकते हैं। इसलिए कि जो नॉर्म्स है, जो सिलेबस बना, पूरे हिंदुस्तान के तमाम जो इदारे हैं उसके पैरेलल बनाए गए। इसके साथ साथ नीतीश कुमार की हुकूमत ने मदद किया और 1127 मदरसों को मैंने कंप्यूटर प्रिंटर खरीद कर तमाम मदरसों को पहुंचा दिया। अब मदरसों के अंदर हमारे बच्चे कंप्यूटर भी सीख सकते हैं और मजहबी तालीम के साथ असली तालीम हासिल करके कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। इतना ही तक नहीं, हमारे मदारिस के असातिज़ों को बहुत कम तनख्वाहें मिलती थी, और मैं जब 30 तारीख को मैं चेयरमैन बना और जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार से मिलकर मैंने कहा कि आप पूर्णिया में रीजनल सेंटर का इफ्तिताह करना है, वक्त दीजिए। उन्होंने वक्त दिया और वक्त देने के बाद वो 17 तारीख को पूर्णिया गए और वहीं पर उन्होंने मदारिस के असातिज़ों को 7वीं शरह तनख्वाह दिया। आज स्कूल में जो तनख्वाहें मिल रही है, हमारे मदारिस के असातिज़ों को इससे तनख्वाह दी है, उनको भी DA दिए जा रहा है। और जो नए असातिज़ा बहाल हुए नियोजित टीचर के तौर पर, उनको भी वेतनमान उन्होंने दिया। और जब 20 के चुनाव से पहले उन्होंने मदारिस को असातिज़ा को पेंशन नहीं मिल रहा था, उन्होंने बुलाया और पूछा, हमका पेंशन नहीं मिल रहा, पेंशन दिया, और असातिज़ा को जो नए असातिज़ा 15% उनको तनख्वाह में इजाफा किया। ये सब काम सरकार के जरिए किए जा रहा है और नीतीश कुमार का ज़हन साफ है। उनका मंशा है कि ये 15% 18% आबादी अगर ये खादा रह जाए तो हम तरक्की नहीं कर सकते। वो तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, बिहार में अक़लियती महकमा कायम था पहले से, लेकिन डायरेक्टरेट उसका नहीं था, उसके तमाम फलाई अफसर नहीं थे। नीतीश कुमार ने 38 अफसरान का पोस्ट सेंक्शन किया, हर जिला में अक़लियती फला अफसर बहाल किया गया। आज जिस तरह दीगर महकमा है, आप सेक्रेटरिएट में आप जाकर देखिए, उतने ही लेवल का नया सेक्रेटरिएट में बिल्डिंग बनाकर और वहाँ पर अक़लियती महकमा कायम किया गया है, ताकि अक़लियतों के फलाह व बहबूद के लिए जो काम हो वो किए जाए। आज नीतीश कुमार ने ये मदरसा इस्तेहकाम योजना लागू किया है कि आज स्कूलों में बिल्डिंग तामीर किए जा रहे हैं, मदारिस में नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मदारिस के अंदर भी क्लासरूम बनाया जाएगा, लाइब्रेरी बनाया जाएगा, बाथरूम बनाया जाएगा, पानी का इंतजाम किया जाएगा, और काम चल रहा है। और मदारिस के जिम्मेदारों को मैं इस बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग LPC मदरसे का जमीन लीजिए और एक योजना बनाकर दीजिए कि हमको 2 कमरा, 4 कमरा, 6 कमरा चाहिए, लाइब्रेरी की चाहिए, पानी का इंतजाम चाहिए। एक दरखास्त जिला के कलीदी अफसर को दीजिए और इंशाअल्लाह यहाँ से जो वो फॉरवर्ड करेंगे वो पैसा सेंक्शन होगा और विभाग की तरफ से ये तामीर के काम कराए जाएंगे। इस तरह से महात्मा कलीदी फलाह ने अक़लियतों के रोजगार के लिए 5 लाख रुपया फ्री में और 5 लाख रुपया इंटरेस्ट के साथ, जो भी हमारे अक़लियत के लोग चाहते हैं बिजनेस करना, वो यहाँ पर डिपार्टमेंट में जो है वो दरखास्त दें और उनको ये रुपये दिए जाएंगे बिजनेस खड़ा करने के लिए। इसलिए कि हम शहरी हैं हिंदुस्तान की, वो हुकूक जो उन्हें मिल रहे हैं दीगर लोगों को, उस तमाम के पाने के हकदार हैं। बशर्ते हमको आगे आना होगा, कोशिश करनी होगी। और इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हम जहाँ पर अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं तो लाजमी तौर पर दीगर मज़ामीन के साथ उर्दू में भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जब तक उर्दू की तालीम हम बच्चों को नहीं देंगे, हमारे इसमें इस्लामिक तशख़्ख़ुस और हमारी सकाफ़त और तहज़ीब उस उर्दू ज़ुबान में छुपी हुई है। एक मैं बात बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी सहायब अंबिया कराम पर नाजिल किए, उस खित्ते में जो जुबान थी उस जुबान में अल्लाह ने नाजिल की। इसी से आप जुबान की अहमियत समझ सकते हैं। अल्लाह ने ऐसी जुबान में दिया जहाँ वहाँ की जुबान हो, और हमारी जुबान उर्दू है। अगर हम इसको छोड़कर अंग्रेजी में और हिंदी में फलाह तलाश रहे हैं, ये नहीं मुमकिन है। पहले अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल करेंगे। अरबी हम अपने बच्चों को हम चाहते हैं, इसके लिए पैगाम देना कि आप अपने बच्चों को बुनियादी तौर पर पहले कुरान की तालीम घरों में दें, उसके बाद उर्दू की तालीम दें और उसके बाद स्कूल में अंग्रेजी और दीगर मज़ामीन में आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
لیکن بنیادی تعلیم سے اگر آپ معروم ہو گئے تو ہمارے بچے دین سے ناآشنا ہو جائیں گے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اور جدھر ڈھالنا لوگ چاہے گا ادھر ڈھال جائے گا۔ اسی لیے آواز لگائی جا رہی ہے، اور یہ آواز لگانا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اذن فی الحج کا کہا گیا، ایک بہت ہی ریتیلی زمین پر اس آواز لگائی گئی تھی، اور آج اس آواز کی قیمت یہ ہوئی کہ پورے دنیا کے اندر تمام لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ یہ آواز لگاتے رہیے، بار بار اچھی باتوں کا تذکرہ کیجیے، کیا اس کے اثرات ہوں گے یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ آپس میں اچھی باتوں کی تذکرہ ہو، اور اس طرح سے ہم مل جل کر اپنے تمام جو حقوق ہیں اس کو بھی ہم حاصل کریں گے، اور ہم مل جل کر اپنے اسلامی تشخص کو، اپنی زبان کو، اور ایک ایک بچہ تعلیم حاصل کریں۔ آج تعلیم ایک ایسا راستہ ہے، ہم غربت کو، افلاس کو، اور تمام جتنی بھی پریشانیاں ہم دور کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر کتنا پیسہ کوئی کسی کو دے دے، کوئی مدد کر دے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مشن کے ساتھ ہمیں ہر بچے کو، آپ اگر جانتے ہیں تعلیم کی اہمیت، جو غریب نہیں جانتا ہے اس کو بتائیے، اس کو بھیجیے، ایک مشن کے طور پر مل جل کے ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی کسی حالات میں آپ رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ اور ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ بہت پریشان محسوس کرتے ہوں گے کہ حالات پیدا ہوئے، یہ مکی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول مکہ میں موجود تھے، خانہ کعبہ موجود تھا، آزان نہیں ہو رہی تھی، جماعت نہیں ہو رہی تھی، سارے حالات وہی 8-10 سال کے بعد اللہ نے حالات بہتر کیے، وہی مکہ قیامت تک کے لیے فری ہو گیا، اور آج وہ تمام احکامات لاگو ہیں جو آج ہونے چاہیے۔ اسی لیے ہمیں حالات جو پیدا ہوتے ہیں اسے صبر کرنا ہے اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ ابھی جو حالات ہیں، آپ کی آبادی 18% ہے، اور آپ چاہتے ہیں ہمارے مطابق حکومت ہو، یہ سوچ کو بدلنا ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ 80 جمہوریت ہے، ووٹنگ پاور ہے، 80% جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے مفاد کو کون زیادہ بہتر کر سکتا ہے، ہمارے مفاد کی حفاظت کون کر سکتا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔